राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में असिस्टेंट एडजुटेंट व स्कूल ऑफ आर्मर्ड वॉरफेयर में कर्नल अनुदेशक के अलावा संयुक्त राष्ट्र मिशन अंगोला में ऑपरेशंस ऑफिसर का भी कार्यभार संभाला। अपने कैरियर के दौरान आपका आर्मी कोर्सेज में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आपने यंग ऑफिसर्स जूनियर कमांड कोर्स और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स वेलिंगटन में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने का सम्मान पाया। आपने पेरिस फ्रांस में प्रतिष्ठित कमान जनरल स्टाफ कोर्स हायर कमांड राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका से रक्षा अधिग्रहण प्रबंधन पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण किया है। देवी और सज्जनों, स्ट्राइक कोर की सफल कमान के बाद अगस्त 2000 कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फतेह अल खरासे, comprising of 144 soldiers representing the main branches of the Egyptian armed forces, reflecting कर्तव्य पथ पर जन भागीदारी, श्रमयोगियों का सम्मान दिखा। वो कागज जुगनुओं सा चमकने लगा जिस पर अंधेरे में मैंने उंगलियों से हिंदुस्तान लिखा। अब आप देखेंगे लौह बल मैकेनाइज्ड फोर्सेस किस प्रकार कर्तव्य पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा में आदर्श अश्व शक्ति यशोबल अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। बिफोर लॉन्च टॉप अटैक और भाग रहे दुश्मन की बख्तरबंद दस्तों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आदर्श वाक्य 17 मैच हर मैदान फतेह। Now approaching the saluting dais is the mechanized column of infantry combat vehicle BMP-2 of Mechanized Infantry Regimental Center led by Captain Arjun Sidhu of 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. ICV BMP-2 named Salat, a high mobility infantry combat vehicle which possesses lethal weapons and night fighting capability. It can operate effectively. को दर्शाता अगला दस्ता क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल का 3री बटालियन लद्दाख स्काउट्स के कैप्टन नवीन धतरवाल द्वारा मार्गदर्शन। इन्फेंट्री के लिए विशेष रूप से परिकल्पित एक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन जो आतंक विरोधी अभियानों में एस्कॉर्ट प्रोटेक्शन एवं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के रूप में बेहद उपयोगी है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में तैनात पूरी तरह से बुलेट एवं माइन प्रूफ एक ऐसा फौलादी कवच दुश्मन की साजिशों को नाकाम करेगा। ये वाहन 10 आर्मर्ड पर्सनल को युद्ध क्षेत्र में ले जाने की क्षमता रखता है। लद्दाखी भाषा में युद्ध घोष की सो लहर ग्यालो। Coming up next is a detachment of K9 Vajra T of 224 medium regiment self-propelled led by Lieutenant Prakash Tiwari, which means always the first. I stand vigilant on borders. I wear the crown of victory on my forehead. I face the enemy with swelling chest. I am brimming with skills. I demolish all the barriers. I am the next game changer in trooper warfare. A supersonic high-precision cruise missile having a range of 400 kilometers. Yes, ladies and gentlemen, it is none other than it is a detachment of BrahMos of 861 Missile Regiment led by Lieutenant Prajwal Kala. BrahMos is capable to strike deep inside the enemy territory with high precision and devastating effect. 861 Missile Regiment District. अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। यह ब्रिज हमसे कहती है मैं बाधाओं से नहीं, बाधाएं मुझसे डरती है। कुछ ही मिनटों में नहर नाले जैसी दुर्गम बाधाएं पार कराने में सक्षम DRDO द्वारा निर्मित ये Node and Mobile Network Center of Corps of Signals led by Major Muhammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarters Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with Mobile Network Center. Major Mahima Kataria of 2 Army Headquarters Signal Regiment is in charge of the Mobile Network Center. The mobile microwave node is developed indigenously and upholds the Atmanirbhar Bharat mission. The motto of the Corps is The next detachment is of Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, the Amritsar Airfield led by Captain Sunil Dashrathe, accompanied by Lieutenant Chetna Sharma of 512 Light AD Missile Regiment.
Akash weapon system, the first indigenously developed air defense system capable of firing short-range surface-to-air missile against enemy aerial platforms. Akash weapon system capable of keeping our skies protected and safe. Used as a potent deterrent in 2019, it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. Motto of the Corps of Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन कि आसमान कम है। आकाश मिसाइल के मैकेनाइज्ड दस्ते के बाद अब बारी है गौरवशाली मार्चिंग दस्तों की। कर्तव्य पथ पर शौर्यपूर्ण कदमों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते मार्चिंग दस्ते कुछ ही समय में मंच के आगे से गुजरेंगे। सबसे पहले मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का दस्ता। नेतृत्व निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। 27 उत्कृष्ट बटालियन से सुसज्जित एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसमें 15 इन्फेंट्री बटालियन शामिल हैं। सन 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात पैदल सेना को अधिक गति शक्ति देने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां एवं बेहतर हथियार प्रदान किए गए और इस प्रकार जन्म हुआ बोल भारत माता की जय। एक नया भारत रचने को निकल पड़ी है टोलियां, गूंज उठी है दिशा दिशा में जय भारत की बोलियां। और इसके पीछे आर्मर्ड कोर सेंटर एवं स्कूल, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर एवं राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड शेरे साथ दे रहे हैं। आर्मर्ड कोर सेंटर एवं स्कूल के नायब रिसालदार मंटू मंडल, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र सिंह। परंपरागत सैन्य समारोह हो, खेल का मैदान या अन्य समारोह, सैन्य धुनें हमेशा जोश का संचारण करती आई। The next contingent is of the Punjab Regiment led by Captain Aman Jagtap of 23rd Battalion, the Punjab Regiment, Longewala. The Punjab Regiment is the only infantry regiment to have a naval insignia, the Galley, which was awarded in 1839 in recognition of its voluntary to sail overseas first time during the First Burmese War. Motto of the regiment, Kushki Vatari, Stalva Jal, which means by land and sea. The regimental war cry, Jo Bole So Nihal, Sat Sri Akal. Marching smartly, forming a graphic mosaic, truly eye-catching, marching shoulder to shoulder in perfect symmetry in rank and file. महान मराठा सैन्य प्रतिभा छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व गुणों और अदम्य युद्ध घोषक भावना से प्रेरणा लेते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता दी मराठा लाइट इन्फेंट्री का है, जिसका नेतृत्व मराठा लाइट इन्फेंट्री की 2री बटालियन के कैप्टन शाश्वत दबास कर रहे हैं। रेजिमेंट को पारंपरिक भारतीय खेल मलखम्ब में अपने कौशल के लिए जाना जाता है। आदर्श वाक्य, कर्तव्य, सम्मान, उत्साह, युद्ध घोष, बोल छत्रपति। Of 21st Battalion Dogra Regiment. Dogra Regiment is one of the most prestigious and decorated regiment of the Indian Army. The Dogra Regiment has shown its sacrifice and valor in all the wars fought by the nation. Motto of the regiment, Kartavyam Anvatam. War cry, Jwala Mata ki Jai. घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी उरी वाला को। अगला दस्ता गलवान के बलवान बिहार रेजिमेंट का, स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 12वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के मेजर रत्नेश तिवारी के नेतृत्व में 2 थिएटर ऑनर, 1 बैटल ऑनर, कुल 351 वीरता पुरस्कारों से सम्मानित, 3 अशोक चक्र, 3 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 16 वीर चक्र, 47 शौर्य चक्र। आदर्श कर्महित धर्म, युद्ध घोष, बोल बजरंग बली की जय। और ठीक उन्हीं के पीछे सुर, ताल और लय के कर्मों से बढ़ता अगला दस्ता। जिंदगी में मुश्किलें तो सुर है, लय है, गीत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। संयुक्त मिश्रित बैंड दस्ता असम रेजिमेंटल सेंटर, महार रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का 100 संगीतज्ञ शामिल। नेतृत्व कर रहे हैं महार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर दिग्गज सिंह। यह बैंड वीर कारगिल की जोशीली धुन बजा रहा है। कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता आनंद ले इस सुरमई धुन का।
अगर कोई कहता है कि वह मरने से नहीं डरता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है। अगला मार्चिंग दस्ता शानदार गोरखा ब्रिगेड के बहादुर गोरखाओं का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 9वीं गोरखा राइफल की 3री बटालियन के लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सिंह सिकरवार। गोरखा ब्रिगेड भारत और नेपाल के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण है। खुखरी और गोरखा के बीच का रिश्ता पुरातन है और दशकों से है। आदर्श वाक्य काफर हुनु भंडा फुरमु रामरो, अर्थात कायरता के जीवन से मौत भली। युद्ध घोष जय महाकाली आयो गुरखाली। वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, गुजरते हमको रहना है सदा ऐसे मकामों से। मंच की ओर अग्रसर अगली झांकी हमारे पूर्व सैनिकों की, जो भारत के अमृतकाल में पूर्व सैनिकों की प्रतिबद्धता की विषय वस्तु पर आधारित है। अगले भाग में चित्रित भारतवर्ष का 3D नक्शा प्रतीक आजादी के 75 वर्षों में सीमाओं की निगहबानी के संकल्प का, अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण के महाप्रयाण का, तीनों सेनाओं के लोगों प्रतीक आपसी समन्वय एवं तालमेल के नारी शक्ति को दर्शाते हुए पहली बार महिला पूर्व सैनिक कैप्टन यशिका त्यागी भी इस दस्ते में शामिल है। ये झांकी अतुल्य गंगा एवं नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, डिजिटल माध्यम से पोल्यूशन मैपिंग, कृषि में ड्रोन्स का इस्तेमाल, डिजिटल जागरूकता इत्यादि में पूर्व सैनिकों द्वारा किए जा रहे अद्वितीय योगदान को दर्शाती है। कलम और स्पैनर प्रतीक इनके विस्तृत ज्ञान के, इनके योगदान के। It is comprising of 80 musicians led by M. Anthony, Master Chief Petty Officer, Class 2. They sail with valor in their soul and honor in their heart. They are the saviors of the marine borders. They possess invincible spirit and dauntless bravery. Their exemplary dedication and hard work keeps the ship moving. Yes, they are 144 young sailors of Indian Navy contingent, led by Lieutenant Commander Disha Amrit, Lieutenant Ashwini Singh, Sub-Lieutenant Priyanka Sharma, and Sub-Lieutenant M. Aditya. This contingent consists of 3 women and 6 men Agniveers. Next, ladies and gentlemen, on the heels of Indian Navy marching contingent, we have Indian Navy tableau on the theme Indian Navy combat ready, credible, cohesive and future-proof, showcasing the multi-dimensional capabilities of the Indian Navy. Nari Shakti in the form of presence of Agniveer and heat indigenously designed and built induction under the tableau. Paving their way on Kartavya Path with Kalam. Here come the men in blue. Warrant Officer Ashok Kumar, Vishish Seva Medal, leading the Air Force Band, playing the tune Sound Barrier Quick March. The band comprises 3 drum majors and 72 musicians. Dressed in colorful ceremonials, this band has enthralled its audience across the country and overseas. And behind the Air Force Band is the marching contingent of the Indian Air Force. The Indian Air Force marching contingent comprising 144 air warriors and 4 officers. IF marching contingent. Behind the contingent commander are Flight Lieutenant Ayush Agrawal, Flight Lieutenant Tanuj Malik and Flight Lieutenant Pradhan Nikhil. And a smart salute to the Supreme Commander of the Armed Forces of India. And now the Indian Air Force tableau displaying the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. A rotating globe highlights the IF's expanded reach, whereby it has been able to render humanitarian aid across borders. AWNC aircraft carries indigenous payloads, having enmeshed linkages with GSAT-7A, the IF's IACCS and other flying platforms to depict how well the Indian Air Force has embraced NCW across multiple domains. NCF Tejas Mark 2, NCF Prakshan, AWNC Netra and C-295 bomb fighting and logistics capabilities. Induction of Rukun Sadhan in all ranks enhances the Nari Shakti. Also depicted a team of Garuds in combat gear with laser designation equipment and specialist weapons. Ladies and gentlemen, next we have DRDO tableau. Moving now on the Kartavya Path, securing nation with effective surveillance, communication and neutralizing threats. Captained by Saurabh Verma, Scientist E. The tableau showcases various technologies for surveillance, communication and neutralization of enemy threats like advanced unmanned aerial vehicles, airborne early warning and control systems, electro-optic and infrared imaging cameras, radars and sonars which provide edge to the Indian soldiers against any adversity.
Moving silently and swiftly on the Kartavya Path and captained by R.R. More, Scientist F, is the wheeled armored personnel carrier carried on a specialist 70-ton trailer. Both the wheeled armored personnel carrier and 70-ton trailer are designed and developed by the Defence Research and Development Organization. The wheeled armored personnel carrier is a अजय अखंड भारत का गणतंत्र का राष्ट्रव्यापी प्रतीक, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रमाण है कर्तव्य पथ। घर में जाऊं रण में यूथन, कान खोलकर सुन ले दुश्मन, मातृभूमि के कण कण को शत्रु रक्त से लहराऊंगा, लहर लहर के आसमान में वायलेट पे लहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा। समय और काल को अपनी कलाइयों पर बांधे असम राइफल्स पूर्वोत्तर के प्रहरी, पूर्वोत्तर के मित्र, सलामी मंच की ओर 187 वर्षों का अद्वितीय इतिहास कैप्टन अक्षय के नेतृत्व में इस दस्ते में पुरुषों और महिलाओं का मिश्रित मार्चिंग दस्ता है। एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष और नारी दोनों के लिए समान अवसर का प्रतीक। महिला सैनिक अग्रिम मोर्चों पर, चाहे उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो, जम्मू कश्मीर या संयुक्त राष्ट्र मिशन हो। 4 अशोक चक्र, 33 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 422 सेना मेडल, आदर्श, कर्तव्य, सर्वोत्तम, युद्ध घोष, दुर्गा माता की जय। और ठीक उन्हीं के पीछे असम राइफल्स का कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता असम राइफल्स के ब्रास और पाइप बैंड। ब्रास बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर राजेश कुमार, पाइप बैंड का हवलदार पूर्ण बहादुर राय। 83 संगीतकार असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई कि मधुर धुन बजाते हुए तो आनंद ले इस सुरमई धुन का, संगीत शौर्य शक्ति का सशक्त संगम। The next contingent marching swiftly at Kartavya Path is of Indian Coast Guard. Sentinels of our sea contingent is led by Deputy Commandant Rohit Singh, followed by Deputy Commandant Akenzut Singh, and 2 lady officers of the guard. Indian Coast Guard is prevention of smuggling through maritime roads. The motto of Indian Coast Guard is Vayam Rakshamaha, which means we protect. और अब देवियों और सज्जनों, आप देख सकते हैं सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ब्रास बैंड के 102 उत्साही जवानों का दस्ता। इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में यह बैंड देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। Following the Railway Protection Force band is Railway Protection Force marching contingent. The contingent approaching the saluting dais is of the Railway Protection Force led by Saurabh Kumar, IRPFS, Assistant Security Commissioner. RPF, an armed force of the Union, has been providing security to about 23 million passengers daily over Indian Railways. Living up to its motto, Seva Hi Sankalp, the RPF personnel rescued 17,756 children and saved 852 lives during the year 2022. सुरक्षा बल के बाद दिल्ली पुलिस की उनके साथ कर्तव्य पथ पर अपनी सुरलहरी फिर ताजा दस्ता दिल्ली पुलिस बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा। इस दस्ते में 1 इंस्पेक्टर, 9 सब इंस्पेक्टर, 15 हेड कांस्टेबल एवं 42 कांस्टेबल शामिल हैं। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए, जिसमें 35 महिला कांस्टेबल भाग ले रही है। बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह 39वीं बार इस बैंड में भाग लेते हुए एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं। और इसके पीछे महिला IPS अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्वेता के सुगाकर के सशक्त नेतृत्व में अगला मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का, इसमें 1 राजपत्रित अधिकारी, 2 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल एवं 100 कांस्टेबल शामिल।
इस गौरवशाली दस्ते ने 1950 से लेकर आज तक 15 गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हुए 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का खिताब अपने नाम किया। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और अब रेगिस्तान का जहाज ऊंट आ रहे हैं सलामी मंच की ओर। सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज में डिप्टी कमांडर मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का भाग है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बीएसएफ का उल्लेखनीय कदम। केसरिया, साफा, कलंगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोहरी और झालर गोटा से सजा ये दस्ता सबका मन हो रहे हैं। सभी जवान 6 फीट से ऊंचे और सब ने एक तरह की मूछें रखी हैं। चाहे राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी हो, लू के थपेड़े या गुजरात का कोसों दूर फैला कच्छ का रण, रेगिस्तान का जहाज सुरक्षा और चौकसी में सीमा प्रहरियों का सबसे भरोसेमंद साथ। आदर्श जीवन पर्यंत कर्तव्य। आपको बताना चाहूंगा कि दुश्मन इन ऊंटों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, क्योंकि ऊंट की आंखों में एक प्राकृतिक वाइपर होता है जो धूल की परत साफ करता है। और अगला दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई में सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड दस्ता। संसार में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार बैंड दस्ता हम हैं। सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का बल की स्वर्ण लहरियां बिखेरता हुआ 35 बैंड वादक शामिल। यह बैंड गणतंत्र दिवस समारोह रेगिस्तान और मारवाड़ उत्सवों का स्थायी आकर्षण है। When united is our youth, every hurdle, every obstacle pave the way, because youth are the power of a tomorrow and the energy of a today. So here comes, ladies and gentlemen, with swelling chest, the future power in nation building, National Cadet Corps Boys Marching Contingent, comprising of 148 young and dynamic cadets of NCC, led by Senior Under Officer Punjari Sivanand of NCC Directorate, Maharashtra. NCC has 17 directorates, which comprises of nearly 14 lakh cadets on its road. NCC is one of the largest youth uniform organizations in the world. Cadets in NCC have excelled in humanitarian aid, sports and adventurous activities. On the heels of NCC Boys Marching Contingent, with great zeal and zest, marching on the tune of Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara, a tune which stimulates long hair, colorful dress, high heels, pretty face, soft heart. Not our thing, because we are not just girls. We are NCC Girls Marching Contingent. Yes, ladies and gentlemen, under the command of Senior Under Officer Sonali Sahu of NCC Directorate, Odisha, we have NCC Girls Marching Contingent consisting of 148 Senior Division Cadets. NCC imparts training to young cadets to instill in them a sense of unity, discipline, integration and community development. NCC is at the forefront of nation building through its youth and power. युवा शब्द को उल्टा कहे तो वह वायु बन जाता है, तभी युवा तूफान लाता है। तो उसी तूफान के पीछे अब कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भावना के साथ। दस्ते की कमान क्षेत्रीय निदेशालय चंडीगढ़ के हिमाचल प्रदेश क्षेत्र की आंचल शर्मा के हाथों। 148 स्वयं सेवक शामिल। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छता अभियान के दौरान 26 लाख किलोमीटर की दूरी तय। हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनके विशेष योगदान की मन की बात में अत्यंत प्रशंसा की। माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहादुरी से सम्मानित बच्चे कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहादुरी कला और संस्कृति, खेलकूद, नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। बच्चे हमारे सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और राष्ट्र की उन्नति के द्वार भी। 11 बच्चों को इस बार यह उपलब्धि हासिल हुई है। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें देश के कीर्ति स्तंभों पर। Our strength is our vitality is our solidarity. Our solidarity is the spirit of nation first, always first. So ladies and gentlemen, to showcase the uniqueness of this fire on the ceremonial boulevard and Broad Avenue, Kartavya Path, a series of
development for all, depicting that we are new energy, new enthusiasm and new development. So here comes, ladies and gentlemen, in the series of tableaux, the tableau of Andhra Pradesh, reflecting a theme, Prabala Tiratham, meaning a festival of peasantry during Mahasankranti. और अब असम राज्य की झांकी, जिसमें लचित बोरफुकन अदम्य साहस, वीरता, बलिदान और देशभक्ति के साक्षात अवतार हैं। कामाख्या माता का पवित्र मंदिर आस्था का प्रतीक और असम के लोकप्रिय बिहू नृत्य आध्यात्म की भूमि, असम राज्य की मनमोहक झांकी का तो आप भी आशीर्वाद ले सकते हैं कामाख्या माता का पवित्र मंदिर का, आस्था का प्रतीक, जहां आशीष की बरसात पूरी तरह से तय है, निश्चित है। तो आनंद लें असम के लोकप्रिय बिहू नृत्य। Now we take you to the stunning landscape of Ladakh, coupled with its diverse culture, traditions, attire, and nestled in the lap of Greater Himalayas, and the Karakoram range is a paradise for adventure lovers. उत्तराखंड देवभूमि की झांकी। उत्तराखंड के कण कण में देवत्व है। एक ओर जहां पवित्र चारों धाम तथा जीवन दायिनी गंगा यमुना अविरल बहती है, वहीं मानस खंड कुमाऊं में विभिन्न मंदिरों का समूह है। तो देखें कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पक्षी मयूर और जागेश्वर धाम, जहां नदियां पर्वत हंसते हैं, जहां देव बसते। Tripura now showcases sustainable livelihood through tourism and organic farming in Tripura with active participation of women. Rich cultural diversity consisting of archaeological monuments, water bodies, temples, mosques and Buddhist stupas. The tableau depicts beautiful Mahamuni Pagoda, Buddhist stupa and performing art forms of Tripura, Hojagiri and Mamata. The tableau also showcases women at work, women with baskets of pineapples, cottage, tree planters and women dressed in colorful traditional attire. स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा से युक्त गुजरात की विषय वस्तु पर आधारित गुजरात की झांकी, ऊर्जा के विशालतम स्रोत सूर्य और पवन के अलावा कच्छ के अभूतपूर्व हाइब्रिड एनर्जी पार्क को दर्शाती हुई झांकी, इसमें पूर्णतः सौर ऊर्जा से प्रकाशित मोढेरा गांव को चित्रित किया गया है। मोढेरा गांव यूनेस्को की विश्व सूरज पवननी जोड़ी थी कच्छમાં હાઇબ્રિડ પ્લાન્ટ ઉભા થાય ને આઠે પ્રહર ગ્રીન ગ્રીન એનર્જી પેદા થાય। झारखंड
उत्तराखंड राज्य की झांकी पवित्र बैद्यनाथ धाम मंदिर पर आधारित, जहां अब हवाई यात्रा शुरू कर दी गई है। झांकी में भगवान बिरसा मुंडा और सोहराई चित्रकला भी दिखाया गया। और अब अरुणाचल प्रदेश राज्य की ये झांकी प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को दर्शाती है। हिमालय के अचल में बसे अरुणाचल प्रदेश को भारत में उगते सूरज की धरा के तौर पर जाना जाता है। हाल ही में सड़क, रेल और हवाई संपर्क जैसे मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित कई योजनाएं शुरू की गई हैं। Enchanting, a cradle high in the lofty green Himalayas, hailed all over the world for its incredible natural beauty, surrounded by mountains and peaks. Here comes the tableau of Jammu and Kashmir. Next from Kerala, Nari Shakti. Kerala presents a tableau of Nari Shakti and folk traditions of women farmers that includes Kalaripaja, a martial art with more than 2,000-year history, percussion and tribal tradition. The women-only tableau is portrayed in a traditional ship called Bepuri Uru. और अब प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पर केंद्रित पश्चिम बंगाल की झांकी। यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है और यह वैशिष्ट का जश्न मनाने का एक प्रयास है। Next from Maharashtra, Sade Teen Shakti Feet and Nari Shakti. The tableau of Maharashtra on the background of Azadi Ka Amrit Mahotsav presents Sade Teen Shakti Feet and Nari Shakti under the theme Nari Shakti. Maharashtra is the land of saints and gods. Out of the many Shakti Feet in the country, Maharashtra has 3.5 Shakti Feet. अंबाबाई कोल्हापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणी मध्ये भवानी तुळजापुरी विश्व चैतन्याची होई तिच्या बाजून महाराष्ट्रीय वतनी शक्ती माता शक्ती शक्ती पीठे दाखवी ती Tamil Nadu now showcases women empowerment and culture of Tamil Nadu which prevailed from the Sangam era to the present. Tableau showcases a statue of ancient poetess Avaiyar, an icon for intellectual women.
The statue of Veer Mangai Velu Nachiyar, riding on a horse, who stood as an epitome of bravery and waged war against the East India Company. காற்றினிலே வரும் கீதம் அன்னை பிறகு முன்னணி தெய்வம் தானே தானே தந்தானே தானே தந்தானே தானே தந்தானே இன்னும் எழுத்து கண்ணீர தரும் தந்தானே தானே தந்தானே தானே தந்தானே தானே தந்தானே गाथाओं को जीवंत करती ये मनोरम झांकी। Bharat Bank. Kurukshetra celebrates the anniversary every year as International Gita Mahotsav with an objective to spread the worldly wisdom of Bhagavad Gita to the entire globe. बेली और दमन एवं दीप की ये झांकी जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण विषय वस्तु पर केंद्रित है। झांकी में INS खुखरी के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। झांकी में वर्ली जनजाति के नर्तक तरपा वाद्य यंत्र के संगीत संग भवाड़ा और मच्छी नृत्य कर रहे हैं। झांकी में एक बड़ी नाव दिखाई गई है जो क्षेत्र की मछली पकड़ने की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। Gentlemen, a tableau from the land of holy rivers and home to Ayodhya and Mathura, the birthplace of Lord Rama and Lord Krishna, Uttar Pradesh, showcasing the theme of 3-day Deepotsav in one of the most important pilgrimage city, Ayodhya, which created a Guinness. और अब ICAR की झांकी पोषक तत्वों के पावर हाउस मिलेट्स यानी मोटे अनाजों पर केंद्रित। भारत सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। भारत मिलेट्स के उत्पादन में सबसे आगे और इसके प्रचार प्रसार से किसानों को चलो मिलट उगाए मिलट का वर्ष मनाए। Next is the tableau of Ministry of Tribal Affairs, which is based on the theme of Eklavya Model Residential Schools, a scheme to provide quality education to scheduled tribe students in the remote tribal areas. A girl on the frontage is the face for equality of educational opportunities provided at the MRSS. नशा मुक्त देश अब भारत को बनाना है, नशे को अब जड़ से मिटाना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय की झांकी देशवासियों को नशे के विरुद्ध शपथ लेकर जन आंदोलन के लिए प्रेरित। जिंदगी के साथी हैं ये दुश्मन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बढ़ते भारत की नई तस्वीर है नारी, रक्षक योद्धा और वीरों की भीड़ है नारी।
के पुनर्स्थापन के अंतर्गत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के भागीरथ प्रयास को दर्शाया गया है। मनुष्य तभी बनेगा महान जब मन में रखेगा जीवों के लिए सम्मान। Manifestations of her as Shakti or power, as Buddhi or intellect, and as Lakshmi or prosperity. As these forms of Matri, Divine Mother, create, maintain and destroy and recreate the universe. To surcharge the atmosphere with patriotic fervor and nationalistic ardor, we have a contingent of 326 female and 153 male dancers, with Vande Bharatan as their motto and women power as their theme. This cultural extravaganza is a second edition with the theme Nari Shakti, being presented by Tame Utho Tum Nari, Yug Nirmaan Tumhe Karna Hai, नए भारत की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है. So here we have, ladies and gentlemen, a spectacular cultural performance on the national stage, Kartavya Path. मैं धरा हूँ, जल हूँ, गगन हूँ, मैं पवन हूँ, मैं ही अगन हूँ, मैं 5 तार की वीणा हूँ. जंजीर हूँ मैं, वेग शिप्रा चंचला हूँ, नीर हूँ. In this multi-hued character of India, there is one common denominator, one belief, one prayer, one ethos, the nation first, always and every time. आज कर्तव्य पथ पर श्रम योगियों को नमन है. जन भागीदारी का चलन है, महिला सशक्तिकरण का अमल है, युवा शक्ति का चमन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद है. आज एक वज्र के समान है भारत, आज नई ऊर्जा से जवान है भारत, आज विराट शक्ति का निवास स्थान है भारत. और ये देखिए, कर्तव्य पथ पर 107 डेयर डेविल्स के साहस का सैलाब लेकर आ रहे हैं कैप्टन आशीष राणा, जिन्होंने जोरदार सलामी दी और वो भी 10.5 फीट की ऊंचाई से. क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं. हर हकीकत को मेरा ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए एक ही काफी हूं. और अब देखिए, जिम्मी की पोजीशन में नायक देसाई अजीत, कोर ऑफ सिग्नल्स का चिन्ह जिम्मी को दर्शाते हुए, हम तीव्र भी हम चौकस भी, हृदय में धड़कती देशभक्ति से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत. नए नए आसमान छूने जा रहा है भारत. ये मोटरसाइकिल है या वायुयान, या जमीन है या आसमान, मुश्किलें हैं आसान नहीं, लेकिन मुश्किलों से हाथ मिलाना तो इनके रोज की आदत है. और ये देखिए, मोटरसाइकिल पर योग करते हुए हमारे यहाँ योग इतना प्रचलित हो चुका है कि हमारे जांबाजों ने तो योग को बाइक पर ही करना शुरू कर दिया है. आप देख सकते हैं सूर्य नमस्कार करते हुए हमारे डेयर डेविल्स
वाह क्या बेफिक्री है, एक से बढ़कर एक पुरुषों को बड़ी ही एकाग्रता और संतुलन से मोटर बाइक पर योग करते हुए। और आप देखिए सिग्नल फाइटर्स की पोजीशन में कोर ऑफ सिग्नल्स के कलर्स को बड़े ही शान से थामे हुए और अपनी उत्कृष्ट एकाग्रता का अद्भुत उदाहरण देते हुए। आपको ये फिल्म की शूटिंग तो नहीं लग रही? जी नहीं, ये रील के नहीं, रियल हीरोज हैं। ये भारत माँ के वो सपूत हैं, ये भारत माँ की रक्षा में सीना ताने खड़े हैं, ये साहस और निर्भीकता के प्रतीक हैं। चलते हैं अब सिग्नल रॉकेट की उड़ान की तरफ। सिग्नल की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले, विश्व दृश्य के परिवर्तन हम, नई सदी के द्वार खड़े हम, नई जागरण नई किरण हम, नई प्रगति नए सृजन हम। और अब देखिए 18 फीट की लैडर पर खड़े हवलदार सुजीत मंडल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए ये पहली बार 18 फीट की लैडर पर कर्तव्य पथ पर अपनी जीत का परचम लहराते हुए हमें बताते हुए कि बादलों का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक फहराऊंगा मैं तिरंगा। जी हां देवियों और सज्जनों, ठीक सुना आपने, 18 फीट की ऊंचाई पर पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए। और अब देखिए देश के विकास का रथ सिग्नल रथ की फॉर्मेशन में हमें ये बताते हुए कि भारत की उत्थान प्रगति का रथ अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये है आज का भारत जो ना थकेगा कभी, ना मुड़ेगा कभी और ना ही झुकेगा कभी। ये बता रहे हैं सबका साथ सबके विकास का रथ जिस प्रगति से बढ़ रहा है वह है नया इतिहास, नया विकास। और अब देखिए देवी और सज्जनों, अभिमन्यु की फॉर्मेशन में कोर ऑफ सिग्नल्स के फ्लैग को लहराते हुए तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता तुम्हें आसमान, कल की तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल हो। देवी और सज्जनों, इनको वॉरियर्स बेहतरीन तालमेल, पूरी तरह से मुस्तैद, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए, पैनी निगाहें, सटीक संचार, चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं, जैसा नाम वैसा गुण। और अब उड़ते हुए पंछी की तरह दिखते हुए हमारे डेयर डेविल्स, इन्होंने तो कर्तव्य पथ को आसमान ही बना दिया है। ये है क्लस्टर ऑफ बर्ड्स फॉर्मेशन। देवी और सज्जनों, क्या आपने कभी सोचा था कि मोटरसाइकिल्स का ऐसा उपयोग भी किया जा सकता है? और अब फूलों का राजा कमल भी आ चुका है कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाने। आप देख सकते हैं न्यू इंडिया का अभिवादन हमारे राष्ट्र पुष्प कमल के फूल की आकृति के माध्यम से करते हुए हमारे जांबाज। और अब रुकूंगी नहीं, हुंकार करूंगी, वाइस कैप्टन लेफ्टिनेंट डिम्पल सिंह भाटी सीट पर खड़े होकर जोरदार सलामी देते हुए। अच्छा, और अब देखिए और सज्जनों, 9 मोटर बाइक पे 33 डेयर डेविल सूबेदार प्रताप सिंह के नेतृत्व में ह्यूमन पिरामिड, चट्टान की दीवार जैसे कि टीम इंडिया के फौलादी इरादे हो जो ना कभी डिगे, ना डरे, ना झुके। आंधियां आए तो सही, परचम आए तो सही, ये रहा मेरा नशेमंद, कोई आंख उठाए तो सही, क्योंकि हम आन है, हम शान है, हम नेक है, हम एक है। आंधियां चले, बादल गरजे, सागर की लहरों में आया तूफान कई बार, पर हम कभी पीछे हटके देखे। तुम पर दुनिया ने नाज किया, तुम हो भारत के कीर्तिमान, बिजली सी मचल मचल लहरे ये राष्ट्रपिता का स्वाभिमान। और अब अगला विवरण विंग कमांडर सुजाता तिवारी के द्वारा। कि वो खुद ही तय करते हैं बुलंदी आसमानों की, कि वो खुद ही तय करते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम। हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस, एंड देयर यू कैन सी द फर्स्ट फॉर्मेशन प्रचंड लेड बाय ग्रुप कैप्टन दीपक कुमार बिश्नोई। आज कर्तव्य पथ पर तिरंगे के 3 रंग सराबोर हैं। ये 3 रंग परिचायक है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी एकता व अखंडता। नाउ यू कैन सी flying over कर्तव्य पथ। See नेत्र फॉर्मेशन AWC flown by Wing Commander D. Sudhakar Naik, the Rafales led by Group Captain Abhishek Paul. नेत्र फॉर्मेशन 30 NKR।